Welcome to brand new show Face to Face. This is an initiative of DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education, which is a premier affiliated institute of Guru Gobind Singh Indraprastha University. We have three different departments. One is DME Law School, DME Management School, and then DME Media School. And we have four academic programs which we offer. These include BA LLB, BBA LLB, BBA, and BA JMC. And Delhi Metropolitan Education is one such institute which has always risen up to the occasion, and we are all for the benefit of the students. And if I talk about the time, since the time this COVID-19 struck in March, we did our best to complete the course, to conduct the online classes, and to do whatever we could for the benefit of the students. During the summers, we conducted online training or online internship for the students, and thereafter we started preparing for the next semester. So we produced a lot of video lectures in each subject, and then we came out with a concept of tutorials, and we started the classes on 4th of August, much ahead before any other institute could think of starting the classes. And during this period, we have tried to make sure that the whole campus is technology driven. So we have a completely technology based campus. Let us have a look of the technology campus of DME. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the tool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures, and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. Welcome to Face to Face, and I was telling you already about this program, and I told you that this is an initiative of DME Media School, and DME Media School is known for all its out-of-the-box ideas and the initiatives which are taken. We put equal emphasis on academics and co-curricular and extracurricular activities. Particularly, I would like to make a mention of the international conference ICANN that we organize every year. And the third edition of ICANN was organized in June this year only, though it was earlier scheduled in March, and due to this COVID-19, it could not happen in the offline mode. So we had to have it in the online mode. But one good thing happened, that we could stretch it to suit to the occasion. So it became a 10-day long conference, and we can boast of saying this, that this was the world's first digital live 10-day international conference. So there we could connect to the scholars in different parts of the world, right from Europe to Australia. And then we also last year organized an international film festival, SIFI. And this year again, we are going to organize a second edition. Besides that, we organize every month a lecture series in the name of renowned journalist B.G. Varghese. And tomorrow we are having the
the first special lecture under VG Workies in this academic session. And we have already started our classes. So, I mean, we keep our students busy and we do everything possible for their grooming and learning. Now, coming face to face, this is a basically an interactive program, a chat program wherein the dean is interacting with three students. These three students are drawn from three different years. At the moment, we have 3 years, like one batch is the outgoing batch, which is still waiting for the final year exam, which have not taken place because of the policy issues. The university and the government are not able to take action, but then, I mean, very soon we hope their examination will take place and they will pass from DME with a bachelor's degree. But till the time they are here, they are as good as the first, second year and the first year students. So that's one outgoing batch. Then there are students who have been promoted from the 4th semester to the 5th semester, so they are in the 3rd year. And then the students who have been promoted from the 2nd semester to 3rd semester, so they are in the 2nd year. So that is how this whole batch comprises, and in each episode there are 3 students. Let us see in today's episode who are these 3 students. So welcome again to Face to Face. Now we all have seen who all are there this evening. So we have Priya from the outgoing batch, and then we have Shubham Mandal, who is from the 3rd year, and Aisha Sultan, who is from the 2nd year. So welcome everybody to this episode of Face to Face. And as it is customary, we start interacting with the senior most person in the program. So I will start interacting with Priya. So Priya, you have been here in DME and DME Media School for the last 3 years. And during this period, because 3 years is definitely a long period, so you would have learned a lot, and a lot of grooming, I believe, would have taken place. But then to begin with, I would like to know from you only, though in the AV we have seen what all your inclinations and the interests are, but we would prefer listening from you. What exactly are your passions? So first of all, thank you so much for inviting me this show. And it is a pleasure to me to talk the dean of our college at such platforms. And sir, if I talk about my passion, तो सर जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे पापा न्यूज़ देख रहे थे, तो तब तो इतनी समझ नहीं थी, तो उनके साथ बैठ के ना मैं भी देखती थी. तो वो जो एंकर होते थे, वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते थे, मैं भी कोशिश करती थी मिरर के सामने खड़ी होके कि मैं भी उनकी तरह बनूं. और पापा से मैं पूछती भी थी कि मैं उनकी तरह कैसे बनूंगी, कब दिखूंगी टीवी पे ऐसे. तो पापा ने बताया था कि उसके लिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा. तो फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, मैं 7th स्टैंडर्ड में गई, सर जैसे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, तो मैं कोई भी इवेंट नहीं छोड़ती थी, सब में पार्टिसिपेट करती थी, बट एंकरिंग नहीं करती थी. अंदर से एक डर था कि शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी. तो जब 9th में गई, तो फिर एंकरिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिला था मेरे को. तो फिर तब मैंने हाँ बोला और मैंने उस दिन एंकरिंग करी थी. उस इवेंट में एनुअल डे था हमारा, तो मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, काफी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करा था. तो फिर उस दिन लगा कि कर सकती हूँ. फिर जब भी एंकरिंग का मुझे मौका मिलता तो मैं करती थी. फिर जब मैं 11th में आई तो मुझे मेरा पर्सनल फोन मिल गया था. फिर उसपे यूट्यूब वगैरह देखना, यूट्यूब में वीडियोस देखना स्टार्ट करा.
मेरे को शॉर्ट फिल्म्स स्टार्टिंग से ही पसंद है, पर जब खुद का फोन आया तो फुल टाइम शॉर्ट फिल्म्स देखती थी मैं। तो जैसे कि पॉकेट फिल्म, लॉन्ग शॉर्ट फिल्म्स हैं, जब उनको देखने लगी तो मेरे को लगा कि मेरे को भी ऐसा कुछ लिखना चाहिए जैसे वो लोग प्रेजेंट करते हैं स्टोरी को। तो काफी बार मैंने लिखने की कोशिश करी, बट मैं नहीं लिख पाती थी। ऐसा लगता था कि नहीं लिख रही, अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं कुछ यूट्यूबर्स से मिली थी, तो उनके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करा एज अ कंटेंट राइटर। मेरी काफी स्टोरीज की रीच अच्छी रही। सर बस इतना ही। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है? दैट इज व्हाट वी वांट टू डू. एंकरिंग एंड कंटेंट राइटिंग बोथ। So you must be doing anchoring for the last 3 years. कॉलेज में तो नहीं करा, बट स्कूल्स में करे हैं सारे इवेंट्स में। हाँ, लेकिन अब स्कूल छोड़े हुए तो 3 साल हो गया. अब तो तुम्हें बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी एंड यू विल बी आउट इन द मार्केट. कॉलेज में जैसे म्यूजिक वो एक्टिविटीज में करा है। म्यूजिक में क्या किया? सो मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है 3 इयर्स। अच्छा, तो क्लासिकल में क्या सीखा? सर क्लासिकल में सरगम और जगजीत सिंह के सॉन्ग सीखे हैं। और सूफी। अच्छा, और म्यूजिक के अलावा, क्लासिकल के अलावा व्हाट एल्स यू डिड? सर मैं पोएट्री लिखती हूँ। नहीं, तुम्हारे एवी में तो मैंने देखा कि तुम डांस भी करती हो और आई मीन बहुत सारी चीजें और करती हो. सो टेल अस अबाउट दैट. सर डांसिंग तो ऐसे है कि मतलब स्कूल में ही करती थी इसको, वो कोई वैसे नहीं है मेरा, बट हाँ ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कर लेती हूँ। और सिंगिंग, बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है मुझे, और पोएट्री लिखना, क्योंकि और मेरा खुद का पेज भी है पोएट्री का। किस तरह की पोएट्री लिखती हो तुम? सर सिंपल, मतलब लाइफ से रिलेटेड। तो ठीक है, जो तुमने अभी कोई रिसेंट पोएट्री लिखी हो, कोई पोएम लिखी हो, उसको सुनाओ. यस सर, मैंने बचपन पे लिखी थी। हाँ, सुनाओ. हर किसी की लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है बचपन। आजकल सब अपने अपनी दुनिया में बहुत उलझे हुए हैं, तो चलो आज बचपन की कुछ यादें ताजा कराते हैं, एक बार फिर से बचपन को जी आते हैं। वो बचपन के दिन भी कितने सुकून के होते थे ना जाने कहीं खो से गए हैं। सुबह की शुरुआती माँ की डांट से शुरू होना, स्कूल का बस्ता उठाकर स्कूल के लिए भागना, घूमते रहते थे गर्मियों की धूप में नंगे पैर, पूरे दिन ऐसे ही खेलते हुए गुजार देना, वो दिन भी कितने अच्छे होते थे ना। काश फिर से खुद को बचपन से रूबरू करा लाती, इस जिंदगी को दोबारा से शुरू कर पाती। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है. हम सभी लोग बचपन को भी याद करते हैं, लेकिन लाइफ में आगे भी बढ़ना है, तो दोनों ही चीजों में एक हमें बैलेंस, एक संतुलन बना के ही काम करना है. नाउ मूविंग ऑन टू शुभम. Shubham, we all know, I mean, what all you do. I mean, I and the other teachers, and we have also seen your AV about all your interest and activities. But certainly in this program, we would like to listen from you what all your passion and interest. First of all, sir, very much thank you for giving me the chance to express myself, that too with you. Because sir, obviously जब मैं कॉलेज में आया था, I never thought कि like मेरे जो डीन होंगे like वो उनको इतना एक्सपीरियंस होगा. सर जब मैं कॉलेज में आया था, मेरा फर्स्ट टीचर इंटरेक्शन थे कामिल सर, बट उससे पहले संचिता मैम से था. तो सर उन्होंने बताया कि ऐसे फील्ड में होता है, आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखने से कभी भाग नहीं सकते. एंड सर मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग एज अ राइटर करी थी, एंड आई होप यू नो दैट एज अ राइटर मेरी करियर स्टार्ट हुआ था. सर फिर वहां से आपका एक वो था, मतलब रेडियो का हमारा वो था ओरिएंटेशन काइंड ऑफ, तो आपने वहां पे बोला था कि बी अ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर वन. बट सर मेरा ये मानना है कि अगर हम सब में घुस सकते हैं तो हम सबको मास्टर भी कर सकते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा बट कर सकते हैं. सर ये मेरा तीसरा साल चल रहा है, एंड मैं अभी प्राउडली ये कह सकता हूँ कि सिर्फ फोटोग्राफी के अलावा मैं फील्ड में हर एक चीज कर सकता हूँ, वेदर इट इज रेडियो, वेदर इट इज एडवर्टाइजमेंट, वेदर इट इज पीआर, कंटेंट राइटिंग, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एनीथिंग. प्लस सर आई एम अ राइटर आल्सो साइड बाय साइड. दैट इज कि सर मेरा क्या है कि मेरा लाइक मौसम जैसा होता है कि लाइक अगर आज मन हुआ तो मैं आज लिख दूंगा, और मेरा एहसास रह जाता है कि ठीक है लिखना है, मैं लिख लूंगा, कोई बात नहीं.
एंड सर ऑल्सो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एंड इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलेगा सर। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कभी भूल मत जाना या कभी ऐसे मतलब याद रखना। सर मुझे बस इस प्लेटफॉर्म में ये कहना है कि बस सर ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सारे वो यहाँ पे है सर। मैं भूलूंगा भी तो किसको भूलूंगा, मेरे यहाँ तक आने के पीछे आप सबका हाथ है। वेदर सर वो आप हो, मेरे प्रोफेसर हो, मेरे दोस्त हो, कहीं ना कहीं उनकी वजह से इतना सही लेकिन सर ग्रोथ हुआ है, मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया है। वेदर इट इज हरजीत सर, वेदर इट इज कामिल सर, वेदर इट इज संचिता मैम, दीपिका मैम, वेदर इट इज ऋत्विक सर, अनमोल सर, तो सबका कंट्रीब्यूशन है। तो सर अगर आज मैं इतना ज्यादा स्ट्रांगली इस फील्ड में हूँ तो आप सबकी वजह से। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम कोई ऐसी 2 चीजें बताओ विच इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, सो वो 1 2 करके कौन सी 2 चीजें होंगी? सर एज इन लाइक डीएमई से रिलेटेड? नहीं, डीएमई से रिलेटेड नहीं, अच्छा। योर पैशन एंड इंटरेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। Oh, मेरा पैशन और इंटरेस्ट सर earlier it was book reading but then I came to video editing and sir trust me video editing और designing ऐसी फील्ड है, हम लोग अगर पूरी लाइफ दे दे फिर भी हमें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो सर फर्स्ट वीडियो एडिटिंग एंड डिजाइनिंग एंड सेकंड इज राइटिंग। सर उसमें कोई बाउंड नहीं है, मैं कभी भी कुछ भी लिख सकता हूँ। तो वीडियो एडिटिंग और डिजाइनिंग में तुमने क्या क्या किया? सर वीडियो एडिटिंग एंड डिजाइनिंग में सर डिजाइनिंग तो कॉलेज में मैं न्यूज़लेटर कर ही रहा हूँ बट सर कुछ इश्यूज थे इसलिए मैं राइट नाउ भी नहीं कर पा रहा। अपार्ट फ्रॉम सर मैंने 2 इवेंट्स पूरे हैंडल किए हैं, दैट इज वन डीएमई MUN 3 एंड सेकंडली देयर इज दिस इंटरनेशनल MUN दैट इज प्रोवेक्टस MUN। अभी रिसेंटली मैंने वो हैंडल किया था एंड काफी ज्यादा उसमें रिकमेंडेशन भी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर वीडियो एडिटिंग में कॉलेज प्रोजेक्ट्स तो थे ही थे, plus sir I was working as a freelancer for a digital page that is scripted, the scripted page। उनकी जितनी भी सीरीज थे उनके डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग वो सब मैं करता था, प्लस सर उनके साथ मैं वीडियो डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहा था। एंड सर रही बात कंटेंट राइटिंग की तो सर वो मैं अपने लिए करता हूँ, वो आई कांट थिंक लाइक मैं एक्टिंग या कंटेंट राइटिंग कभी पैसे के लिए कर पाऊंगा बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई डू फॉर माय पैशन, लाइक दैट्स माय पैशन। ओके, तो जो तुम राइटिंग या रीडिंग करते हो, तो इफ आई आस्क आई मीन क्वेश्चन पर्टेनिंग टू दिस, इफ यू आई आस्क अबाउट द रीडिंग, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स और व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू रीड एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर मोर कीन इन राइटिंग और व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग्स यू डू? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर अगर मैं रीडिंग में बोलूँ तो आपको थोड़ा ऑफ द ट्रैक लगेगा बट सर इट्स नॉट द राइटर हु अट्रैक्ट्स मी, it's a kind of writing and the kind of dialogues they use. For example, sir, I can see a whole movie or I can read a whole book only for just one dialogue. So, sir, recently I came up with Ravinder Singh's that book, Now Your Dreams Are Mine Now. So, sir, उसमें सिर्फ उसके टाइटल की वजह से मैंने वो बुक पढ़ी थी। सर ऑब्वियसली जब बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्रिटिक भी हमारे अंदर आता है कि हमें ये पोर्शन अच्छा लगा, ये पोर्शन नहीं। एंड सर अगर राइटिंग के बारे में बात करें तो सर इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था नॉर्मल डे टू डे लाइफ के रिगार्डिंग, बट नाउ आई एम मोर ऑफ अ काइंड ऑफ मंटो राइटर, लाइक यू नो सोसाइटी के वो हिस्सों में बात करना जिसमें कोई शीशा नहीं डालना चाहता। एंड उसके ऊपर हमने थिएटर प्ले भी किया था एंड सर यू लाइक दैट एंड इवन आई कैन जो सेकंड एडिशन था उसमें। तो तुम थिएटर सोसाइटी में भी हो? नहीं? यस सर, मैं थिएटर सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ एंड रेडियो सोसाइटी भी कन्वीनर हूँ एंड सर न्यूज़लेटर भी मैंने हेड किया हुआ है। एंड सेकेंडली सर मेरा हर एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, वेदर इट इज फ्लेम्स और अलंकार और डांस और फैशन सोसाइटी। सो यस सर, काइंड ऑफ मैंने इन सब फील्ड में काम किया हुआ है। हाँ, अभी मंटो की तुमने बात की, अभी मंटो के ऊपर 2 दिन पहले एक बहुत ही अच्छा वेबिनार हुआ था, वेरी टॉप पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। Yes sir. I shared the link also with you, I mean with the students. I don't know whether you got it or you attended it or... No sir, you didn't share the link, but yes sir, I got the link. But actually sir, थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए मैं वो अटेंड नहीं कर पाया था। Like मैं तो बाहर था and I got that link, so but I was very excited to attend that meeting. Okay, so I mean anything that you would have written, would you like to share with us? Sir, yes sir, अभी recently मैंने 14th अगस्त के लिए लिखा था एक पोएट्री एंड मैंने वो परफॉर्म भी किया था उसमें। द टाइटल ऑफ माय पोएट्री इज मैं कैसा इंसान हूँ भाई। एंड सर ये एक्चुअली एक पर्सन के बारे में होता है जो कि यू नो कि इस देश में लाइक हमें सबको पता है कि अभी रिसेंटली राइट्स हुए, छोटा बड़ा काइंड ऑफ हर तरह की रेसिज्म में सेक्सिज्म कुछ ना कुछ रहता ही है हमारे देश में। तो सर उसके रिगार्डिंग मैंने लिखा था एंड रिसेंटली मैंने उसको मास्टर किया एंड सो हियर इट गोज लाइक, सड़क पे चलते चलते जुबां पे रखी बात जब खत्म ही हो आई, तभी मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आई कि मैं कैसा इंसान हूँ भाई। मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ,
मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या राम नाम जपता हूँ। बाबरी का किबला मेरा, यशु के गिरजे मेरे। उर्दू का एक अखबार है मुझ में, किया तो गंगा स्नान भी मैंने। मैं ज्ञान भी तो देता हूँ, मैं सिगरेट भी तो पीता हूँ, मैं बाकी 100 से मिलता हूँ, मैं बाकी 100 से लड़ पड़ता हूँ। लोगों के मन का खोट भी मैं, अच्छाई का एक स्रोत भी मैं। मैंने कुरान भी पढ़ी है और इंजिल पर भरोसा भी कायम रखा है। लाखों नाम है मेरे, लाखों को मैंने जाना, लाखों लोग मुझ में बसे, लाखों में मैं बसा। दुनिया के रग रग में हूं मैं, आखिर चंद शब्दों का इंसान हूं मैं। दैट्स इट सर। तो काफी काफी क्रांतिकारी थॉट्स हैं तुम्हारे, शुभम। यस सर। सर वंस यू रीड मंटो, देन आपको हमेशा ऐसे ख्याल ही आएंगे कि लाइक जिस चीज पे बात नहीं हो रही उस चीज से बात होना चाहिए। एंड सर अगर आपसे भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि आपने हमेशा बोला अगर तुमको लगता है सही है सो स्टैंड फॉर इट। तो मंटो की कौन सी ऐसी चीज है, आंसर मी इन वन लाइन, जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद है? सर उनका तुनुक मिजाज और तीखा अंदाज, जो उनकी राइटिंग में भी काफी झलकता है कि हमें वो पर्दे फाड़ देने चाहिए जो हमें समाज को देखने से रोक रहा हो। Good. So moving on to Aisha, she's waiting since long. So Aisha, we saw in the AV all your interest and passion, but certainly since this is a live program, we would like to listen from you about your passions. So basically, I want to become a news anchor because I like to, I like to represent myself. कि मैं अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकती हूँ और कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो व्हेन आई वाज थॉट कि मुझे क्या बनना है अपनी लाइफ में, तो मैंने सबसे पहले ये चीज माइंड में रखी कि मुझे जो भी बनना है उसमें मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। कि अगर मुझे जर्नलिस्ट बनना है तो मुझे टीवी एंकर इसलिए बनना है क्योंकि मैं उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मेरे में सर अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, बट जब मैं कॉलेज में एंटर हुई थी मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बट आई डिसाइड कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है एंड I participate in each and every events, like लॉ का इवेंट्स हो या मीडिया स्कूल के इवेंट्स हो, मैंने सब में एंकरिंग करी। एंड माय टीचर्स, माय फ्रेंड्स, सब ने मेरे को बोला कि हाँ मैंने अंदर अपने डेवलप किया है, कुछ अपने अंदर ग्रोथ की है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मेरे वे ऑफ कम्युनिकेशन ग्रो हुआ। एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने अपना एक पेज स्टार्ट किया जिसमें अपनी वीडियोस बनाती हूँ एंड ऑडियोज भी होती है, न्यूज भी शेयर करती हूँ, जस्ट लाइक कि मुझे मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप हों कि जब मैं आफ्टर 3 इयर्स अपने कॉलेज से निकलूं तो मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज हों जिसके बिहाफ में मैं कहीं अप्लाई कर सकूं या मैं आगे अपना कुछ अचीव कर सकूं। तो आई एम वर्किंग ऑन माई पर्सनैलिटी करंटली, हाउ आई कैन कम्युनिकेट, और मैं कैसे अपना वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर सकती हूँ। करंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस। So, I mean, should we understand by this that your passion is grooming yourself, or how do we define this? So my passion is not to, sir, actually when I was in 11th and 12th class, I take science because I want to become an engineer. Journalism was not my starting plan. So, but when I come out from the school, I realized that साइंस या इंजीनियरिंग इज नॉट दैट मच अट्रैक्टिव, और इतना ज्यादा मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि जब मुझे वो चीज करने में मजा नहीं आ रहा तो मैं उस चीज को अचीव नहीं कर सकती, उसमें मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकती। देन आई ड्रॉप माई ईयर कि मुझे क्या लाइफ में करना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, देन मैंने रियलाइज किया कि हाँ मैं एक अच्छी अच्छे से बोलना, मुझे चीजों को रिप्रेजेंट करना आता है। देन आई सपोज कि हाँ मुझे जर्नलिज्म में जाना चाहिए, क्योंकि व्हेन आई वाज इन 6th और 7th क्लास मेरे डैडी ने मेरे को बोला था कि मैम बी अ मास कम्युनिकेटर और बी अ रिपोर्टर इज वेरी गुड जॉब फॉर अ गर्ल, और आप एज अ करियर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप एज अ जर्नलिस्ट एक न्यूज रिपोर्टर बने। देन मैंने उस पर रिसर्च करी, काफी पढ़ा कि आप कौन से कॉलेज से कर सकते हैं, क्या होता है, मैंने काफी रिसर्च करके देन मैंने आई थिंक फरवरी और मार्च में डिसाइड किया देन मुझे मास कम्युनिकेशन करना है। मैंने 1 महीने में एंट्रेंस की तैयारी करी, देन मैंने आईपी में
का एंट्रेंस दिया। देन मैंने सर कॉलेज का भी नहीं पता था कौन सा ज्यादा बेटर है, तो मेरा एक फ्रेंड था डीएमई में जिससे मैंने बात करा, और मैंने डीएमई को सिर्फ उस टाइम तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ही एडमिशन लिया था कि स्टूडियो है, वो चीजें हैं जो मुझे चाहिए अपने लिए। देन मैंने डीएमई में एडमिशन लिया एंड नाउ आई रियलाइज कि मैंने बहुत अच्छा किया एज अ बीजेएमसी कोर्स में, मतलब एडमिशन लेके और डीएमई में एडमिशन लेके, क्योंकि मुझे फ्रॉम द फर्स्ट मंथ से ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट किया, एंकरिंग करी, तो आई रियलाइज कि हाँ मेरा जो डिसीजन था वो काफी अच्छा था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपने डिसीजन। नहीं, रिग्रेट होना भी नहीं चाहिए। जब आपने सोच समझ के फैसला लिया तो फिर रिग्रेट का तो कोई चांस नहीं है। हर एक को ये करना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसका कैसे हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। वन शुड ऑलवेज स्ट्राइव डूइंग दैट। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. Okay, so moving on to Priya. Priya, since you have been there in the college for the last 3 years, so you would have made a number of friends who would have been with you in your thick and thin, and then obviously in different semesters, in different papers, you would have been taught by different teachers. So, and then you would have enjoyed the college life. So if I ask you these three things, what would you say about your friends, teachers, and the college life? सर जब मैं इस कॉलेज में गई थी तो फर्स्ट डे तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। और जब मैंने फर्स्ट डे फैकल्टी मेंबर्स को देखा तो सब इतने अच्छे से पढ़ा रहे थे कि अगर हमारे कोई क्वेरी भी थी तो हमें इंस्टेंटली वो सॉल्व कर दे रहे थे, उस चीज को डिले नहीं कर रहे थे। और जब धीरे धीरे टाइम हुआ, फिर कुछ मंथ्स बाद तो फ्रेंड्स बन गया था, फिर हमारा ग्रुप बन गया था जिसमें हरीश, कुशाग्रता, पारुल, अनुष्का, हम 5 लोगों का ग्रुप। फिर धीरे धीरे करके सेकेंड ईयर में आई, तो हर सेमेस्टर में जो हमारे फैकल्टी थे हमें हेल्प करते थे, चाहे वो हमारी कोई वैसे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या फिर एकेडमिक वाइज हो, और हमेशा हमें मोटिवेट ही करते थे हर चीज के लिए। और कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, और क्लासरूम्स सारे अच्छे हैं, और सर बस इतना ही। अच्छा, तो I mean, did you enjoy being in the college for 3 years, or you were simply concentrating on your studies and that's it? नो सर, मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ। एक्चुअली जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे 12th में, उन सब ने सेम कोर्स लिया है एंड वो ड्यू में है सारे सेम कॉलेज तो कोई बुरा नहीं होता, बट मुझे जो मेरी चॉइस है उस पर बहुत प्राउड फील होता है। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो सारी चीजें थी जो मुझे चाहिए थी, चीजें होनी चाहिए थी। नहीं तो कॉलेज में तुम्हें सारी चीजें तो मिल गई, बट हाउ डिड यू इंश्योर दिस कि जो भी चीजें मिली उनका जो मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके, उसके लिए तुमने क्या किया? सर मैंने भी मेहनत करी। एकेडमिक्स में जैसे है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं टीचर से पूछ लेती थी, मैं उसको इग्नोर नहीं करती थी कि छोड़ो रहने दो खुद से कर लूंगी, मैं बिल्कुल इंस्टेंटली पूछती थी उस चीज को, और सर मार्क्स भी मेरे सही आ जाते हैं। चलो अच्छा, so Shubham, moving to you, how will you, I mean, elaborate if I ask you the same question about your friends, teachers, and the college life? सर ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा मेरे लिए भी इमोशनल रहेगा, बिकॉज सर दे ऑलवेज सपोर्टेड मी यहाँ तक हमेशा। तो जब मैं कॉलेज आया था सर, मुझे एक्चुअली संचिता मैम से बात हुई थी, मैं उनसे टच में आया था, उन्होंने सजेस्ट किया था, एंड नो डाउट सर डीएमई ऑलवेज बीन माय फर्स्ट चॉइस। तो सर मेरे स्कूल दोस्तों के साथ मैंने एडमिशन लिया था, कृतिका सिमरन, वो सेक्शन सी में है। तो सर मैं जब कॉलेज आता मैं काफी इंट्रोवर्ट था, तो आई कुडंट मेक फ्रेंड्स। तो माय फर्स्ट फ्रेंड इज प्रियंका, लाइक वो सामने से आई थी, उसने फ्रेंडशिप करी थी, उसके साथ एक हफ्ता गया। फिर सर देन सिद्धार्थ कुकरेजा, माय बेस्ट फ्रेंड। सर इन दोनों के साथ मेरा पहला सेमेस्टर बीता, एंड सर पहले सेमेस्टर के बाद आई मेड फ्रेंड्स लाइक निधि, अनिरुद्ध, कौशिक, साक्षी। सर लाइक दे आर लाइक माय ऑलवेज हैंगिंग बडी। एंड सर एक और फ्रेंड है मेरी, दैट इज मोक्षिता। एंड सर नहीं तो अलग ही होता वो, लाइक हमेशा कहते हैं ना सर, जो एक क्राइम पार्टनर, शी इज लाइक माय क्राइम पार्टनर, हम दोनों का मैचअप बिल्कुल हो जाता है एकदम से। एंड सर रही बात जो लास्ट ईयर मैं लॉ में, नहीं वैसे क्राइम किस तरह के करते हो?
सर क्राइम एज इन लाइक छोटी मोटी क्लास के बीच में तेरी शैतानी होगी, लाइक मैम को बार बार इरिटेट कर देना, लाइक क्वेश्चन से, ऐसा नहीं कि मतलब नोटोरियसली एकदम चिल्ला रहे हैं क्लास में, ऐसा नहीं, लाइक मैम क्वेश्चन, मैम ये होता तो ये कैसे होता, सर ये होता तो ये कैसे होता, ऐसे कभी मान लीजिए लाइक सिलेबस काफी आगे चला गया तो सर मैम लेट्स ड्रॉप दिस क्लास, लाइक लेट्स टॉक अबाउट एनीथिंग एज लाइक अनदर सब्जेक्ट काइंड ऑफ ऐसे। देन सर मेरे लॉ में भी दोस्त बने काफी, उनमें से कुछ अभी अटेंड भी कर रहे हैं ये, एंड लाइक आई एम वेरी मच थैंकफुल डीएमई की, लाइक मेरे को सच में ऐसा दोस्त दिया है। एंड सर रही बात मेरे फैकल्टीज की, सो नो डाउट दे आर द बेस्ट फैकल्टीज आई हैव एवर बीन, लाइक जिनके साथ मैंने अभी तक टाइम स्पेंड किया सर, ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट। एंड सर वो फैकल्टीज से पहले मेरे दोस्त बने, देन वो मेरे फैकल्टीज बने, इसलिए सर आज भी वो बॉन्ड अच्छा है और वो हमेशा रहेगा। सो सर फैकल्टीज लाइक एक सबसे ज्यादा दर्द ना मुझे सर उनसे अलग होने में लगेगा, बिकॉज सर दोस्त तो रहेंगे, वो फील्ड में होंगे, किसी के साथ मैं किसी फील्ड में जाऊंगा, लेकिन सर टीचर्स के साथ मिलने के लिए मुझे कॉलेज में आना पड़ेगा फिर, लेकिन वो भी क्लास में होंगे, तो सर वो चीज़ नहीं ऐसा नहीं है। अब आज की डिजिटल एज में अब वो बात तो फिजिकल डिस्टेंसेस हैव नो मीनिंग, यू कैन ऑलवेज बी इन टच विद योर टीचर्स इफ यू लाइक दैट। मैंने तो अपने किसी स्टूडेंट को 25 साल पहले भी पढ़ाया होगा, आई एम इन टच विद ऑल दोज पीपल, though they are on top positions in newspapers and news channels, but that connection remains। तो वो प्रॉब्लम अब नहीं है, पहले हुआ करती थी जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था और इंटरनेट नहीं था। सर नो यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, लाइक कनेक्शन के लिए हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं, भले वो सेल फोन हो, मैसेज हो, बट सर एक होता है ना कि सर पर्सनल टच, सपोज मैं अभी आपसे मिलने आता हूँ कि सर वेरी मच थैंक यू, रेदर देन वीडियो चैट और या फिर मैसेज, सर आपको अच्छा लगेगा, लाइक मुझे भी अच्छा लगेगा कि सर ने मुझे एकदम से पहचाना इतने दिनों बाद, एंड वो मुझे अभी भी याद है कि लाइक शुभम मेरा एक स्टूडेंट था, वो भी मेरे को याद करता है, तो सर वो फीलिंग या फिर वो एक बात ही सर अलग है, जब पर्सनल टच रहता है सर, वो चीज कभी नहीं जा सकती सर। नहीं तुम आते रहना, अभी तो 1 साल कॉलेज में हो ना, और उसके 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 बाद जब निकल भी जाओगे तो उसके बाद आते रहना, यू आर ऑलवेज वेलकम। यस सर मैं आता रहूंगा, आई कैन लीव डीएमई सर इज सो इजी, लाइक मैं आता रहूंगा सर। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डीएमई फॉर सच वंडरफुल फ्रेंड्स, फॉर सच वंडरफुल टीचर्स, फैकल्टीज, also sir some of my colleagues and also the seniors ने भी बहुत अच्छा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनमें से सर प्रिया भी एक है, जसप्रीत वाज देयर, एंड तनुश्री दी, समीक्षा दी, स्मृति दी, देन सर सार्थक भैया, रोहित भैया, मोल भैया, सर इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे आज ग्रूम होके मुझे मोल्ड करने में जो भी मैं आज हूँ। तो तुमने जैसे प्रिया का नाम लिया, तो प्रिया से तुम्हारा किस तरह का मतलब किस तरह का संबंध था, क्या तुमने साथ में किया नहीं किया, कैन यू टेल अस अबाउट दैट? सर प्रिया के साथ मेरा हैंग आउट ज्यादा नहीं रहा था, लाइक जो ज्यादा हैंग आउट भी था वो फर्स्ट सेमेस्टर में था, एंड वी हैव अ कॉमन फ्रेंड दैट इज जसप्रीत, तो सर हम लोग साथ में मिलकर लाइक कभी बाहर चले गए, थोड़ा हैंग आउट कर लिया, या फिर लाइक दिवाली फेस्ट जो हुआ था सर वहाँ पे फोटोज क्लिक कराना है ऑल, तो सर वैसे प्रिया से मैं वैसे मिला था, एंड देयर वाज आल्सो सर हरीश आल्सो देयर, एंड कुशाग्रता दी, ऑब्वियसली मैं उनका नाम कैसे भूल सकता हूं, न्यूज़लेटर में उन्होंने मुझे ग्रूम किया सबसे ज्यादा कि शुभम डू दिस एंड डू दिस, ये क्लीन होगा ये नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर में किस किस के साथ हैंग आउट करते थे? सर फर्स्ट ईयर में सर फर्स्ट ईयर में मैं हैंग आउट किया ही नहीं सर मैंने, लाइक फर्स्ट ईयर में मैं फ्रेंड्स बनाने से पहले नहीं फर्स्ट ईयर में तुम फर्स्ट ईयर में नहीं, तुम अपने जूनियर बैच के स्टूडेंट के साथ के किसके साथ हैंग आउट करते? हाँ सर जूनियर्स में से हैंग आउट करने के लिए सर देयर इज दिस श्रेया झा, माय एंड सर ताबी, फर्स्ट ऑफ ऑल ताबी के जितने स्टूडेंट है, लाइक वेदर इट इज श्रेया, श्रद्धा, देन यशिका, अदिति, एंड सर आश्रय, और लाइक अपार्ट फ्रॉम ताबी आश्रय, देन अनीश, अनुष्का, देन अंश पांडे सर, देन प्रखर, like they are ready to go buddy, like bro let's go, चल काम करते हैं, चल बाहर थोड़ा हैंग आउट कर लेते हैं, सर जैसे होता है, तो they are like my to go buddies। तो तुमने अभी अपनी राइटिंग की बात की जैसे, और अभी हमें तुमने अपनी एक पोइम भी सुनाई, तो तुम अपनी मदर टंग में कोई काम नहीं करते हो? सर मदर टंग में लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखता, बट सर मदर टंग में थोड़ी मिस्टेक्स निकल जाती है, एंड सर पापा इज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दैट कि लाइक ये करो, सो सर मदर टंग में मैं ज्यादा गाना पसंद करता हूँ, एंड ऑब्वियसली रविंद्रनाथ टैगोर इज देयर, सो सर उनके गाने कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ठीक है we would prefer listening that only। So sir, like right now अभी आप yeah right. Obviously I mean anything which is happening live in this show। Yes sir, why not, sure, like I'm very much delighted कि आपने सर मुझे ये भी करने के लिए दिया। Okay, so sir गाने का नाम है आमी चीनी गो चीनी, so it goes like
আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারই গান, আমি তোমাতে সপেছি প্রাণ, ওগো বিদেশিনী। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারই গান, আমি তোমাতে সপেছি প্রাণ, ওগো বিদেশিনী। ভুবন ঘুরিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, ভুবন ঘুরিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, আমি অতিথি তোমারই গায়ে, ওগো বিদেশিনী, ওগো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ওগো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী। थैंक यू सर, दैट्स ऑल। गुड। दो लाइन में अगर बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बांग्ला नहीं समझते, तो तुमने Yes, sir, क्या yes. गाया? सर सिंपली सर ये एक्चुअली एक पर्सन की मन की बात है जो अपने लवर को कहना चाहता है, जो लाइक काफी समुद्र 7 नदियां है, तो वो समुद्रों के पार रहती है, तो वो उसको डेडिकेट करते हुए कहता है कि जब भी मैं आसमान को देखता हूँ या जब भी ऐसे सुनता हूँ तो मुझे तुम्हारा ही गाना सुनाई देता है। पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, एंड आखिर में इस जो नए देश में आया हूँ वो तुम्हारा ही तो है। तो मैं तुम्हें जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ, नए देश की रानी, तुम सिंध नदी के उस पार रहती हो, मेरे देश की रानी। गुड गुड गुड। सो यू आर अ वर्सेटाइल पर्सन ना, तुम्हारा हर चीज में दखल है, which Yes. is definitely good for the grooming of a person. So moving on to Aisha. Aisha, if I ask you about your friends, though, I mean, only 1 year has passed in the campus, and then since March there is a lockdown, so very less time you have got spending on the campus, but still you would have made number of friends, and you would have got influenced by so many teachers and all. So what will you tell us about that? सर एक्चुअली आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, मेरे फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनते हैं। मैंने फर्स्ट डे ही मैंने एंटर करा और क्लास में मेरे लंच तक मेरा इतना हो गया था कि हाँ मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं फर्स्ट डे आई हूँ और बहुत ऑड फीलिंग हो रहा है, नहीं, मेरे काफी अच्छे तक लंच तक फ्रेंड्स बन गए थे, हमने हैंग आउट करा, बहुत कुछ करा। बट सर वो था कि आप आए, आपकी बातचीत हुई, सारे फ्रेंड्स, एक होती है ना क्वांटिटी और क्वालिटी बात वाली बात, तो सब आप मेरी बातचीत सबसे रहती है, बट जो मेरी एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बने वो खुशी हो गई, हार्दिक हो गया, पलक रस्तोगी, ये लोग मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं जैसे एंकरिंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो अभी मेरे ये काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ मुझे काफी सपोर्ट करना। अभी मैंने पेज स्टार्ट किया था, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हार्दिक से बात करती हूँ, या खुशी या पलक किसी से भी, तो ये मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। बाकी मेरी बातचीत सबसे, इनफैक्ट मेरे लॉ के स्टूडेंट से भी काफी बातचीत है क्योंकि मैंने उनकी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा है, तो मेरे फ्रेंड्स काफी जल्दी बन जाते हैं। बट मेरे जो बहुत मेन फ्रेंड्स होते हैं उनसे होता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहती हूँ, बाकी कॉलेज के फ्रेंड्स कॉलेज तक ही लिमिटेड रहते हैं। और अपने सीनियर बैचेस में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तुम्हारे कैसे फ्रेंड्स हैं? निधि है और रोहित भैया है, मतलब बहुत सारे सीनियर है जिनसे मैं एंकरिंग के थ्रू ही मिली, क्योंकि मैंने मोस्टली एंकरिंग में पार्टिसिपेट किया, तो सीनियर्स काफी सपोर्टिव है। इनफैक्ट फैकल्टी इतनी ज्यादा सपोर्टिव है, जब मैं फर्स्ट एडमिशन के लिए आई थी तो मुझे मोहित सर मिले थे, एंड ऑन द फर्स्ट डे मोहित सर मेरी वन ऑफ द फेवरेट फैकल्टी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है, वो हर चीज को इतने अच्छे से समझाते हैं, और अगर आपको कोई उनसे क्वेरी है या कोई बात करनी है तो आप हेजिटेट नहीं हो सकते कि सर हैं तो थोड़ा इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते कुछ, आप बहुत फ्रीली उनसे बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। मनमीत मैम ने भी काफी एंकरिंग में हेल्प करी है,
तो सारी फैकल्टी काफी अच्छी हैं, बहुत ही पोलाइट और बहुत अच्छे से आपको आपके साथ मतलब इंटरेक्ट करते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आप एक टीचर से बात करो. इट्स लाइक योर फ्रेंड्स कि आप उनसे कोई प्रॉब्लम भी हो पर्सनल तो आप शेयर कर सकते हैं उनसे. तो अभी तक की सारी फैकल्टी काफी अच्छी है, मतलब आगे भी होगी बट अभी तक काफी अच्छी है. हाँ, निश्चित रूप से आगे भी होंगी. So moving on to Priya. Priya, before I ask the next question, one thing which I forgot to further take away, like you told us about your classical music. So, I mean, if you can tell us more as to what all classical music you have done, and can you sing some classical music for us? Yes, sir, I can sing. Okay. So, सुनो. हाँ हाँ बिल्कुल. ये करे और वो करे, ऐसा करे वैसा करे, जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन में हम क्या क्या करें, करे वो करे, जी में आता है पर्दे से पर्दे का जवाब, जी में आता है कि दिल पर्दे से पर्दे का जवाब, हमसे वो पर्दा करे, दुनिया से हम पर्दा करे, ये करे और वो करे, ऐसा करे वैसा करे. सर ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जगजीत सिंह का तो गजल. तुम रेगुलर सुनती हो म्यूजिक? सर जब मैं 7th से थी तब से मैंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया था. एक एनजीओ था विद्या इन चाइल्ड, और वहाँ पे मैंने पता करा कि वहाँ पे म्यूजिक मतलब क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं. तो मेरी टीचर थी समीना डे. तो सर 7th से लेके 12th तक तो मैंने रेगुलर क्लास अटेंड करी थी. जब मैं कॉलेज में आई तो टाइम इशू हो गया था, तो फिर नहीं कंटिन्यू कर पाई थी आगे. So moving on, if I ask you about your parents and family and the support that you have got from your parents, can you tell us something about that? यस सर. सर जो मेरी मदर है वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती हैं, और पापा सिर्फ एकेडमिक्स में करते हैं. दे ओनली नीड मार्क्स, कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मेडल्स का है. और अभी रिसेंटली लॉकडाउन में मैंने काफी यूट्यूब वीडियोस में मतलब एज ए एक्टर रोल प्ले किया था, और मैं कंटेंट राइटिंग मतलब स्क्रिप्ट भी राइट करती थी उनके लिए. तो पापा इससे बिल्कुल डिसएग्री रहते हैं, उन्हें ये सब चीजें पसंद ही नहीं है. तो मैं काफी बार उन्हें बिन बताए जाती हूँ, क्योंकि मेरे को एक्टिंग बहुत पसंद है. मतलब यूट्यूब वीडियोस में काम करना मेरे को बहुत पसंद है. तो मम्मा को तो सब चीजें पता होता है और मम्मा सपोर्ट भी करती है, बट पापा को सिर्फ मतलब मार्क्स और स्टडीज, वो हमेशा स्टडीज के बारे में ही पूछते हैं. लेकिन अब तुमने ये तो बोल दिया, ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गया, अब ये तो यूट्यूब पे भी जाएगा. सर कोई बात नहीं, पापा को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है. एकेडमिक्स भी मैं करती हूँ साइड बाय साइड, ऐसा नहीं कि वहां पूरी हूँ. मैं दोनों चीजें करना चाहती हूँ, मतलब अपने इंटरेस्ट एरिया को भी मैं मतलब दबाना नहीं चाहती हूँ, उसमें भी वर्क करना चाहती हूँ. तो जब प्रोग्राम खत्म हो जाए, इसका यूट्यूब लिंक होगा, वो तुम अपने फादर को दे देना देखने के लिए. यस सर, मैं दिखाऊंगी. ठीक है. So moving on to Shubham again, we would like to know about your family and your bonding with your family, if you can tell us about that. Sir, first of all, sir, my mom expired when I was in 12th. Sir, 12th तक मेरा जो स्कूल था थोड़ा दूर था, so तब like 6th तक मैं अपनी फैमिली का मतलब कहते हैं ना छोटा बेटा है, so लाड प्यार दुलार एकदम, like बाहर अकेले नहीं जाना, या ये मत करना वो मत करना. सर 9th 11th 12th थोड़ा रफ गया मेरा, मैं काफी ज्यादा बिजी हो गया. like घर पे मैं मुश्किल से 2 घंटा टाइम दे पाता था. then sir after my mom expired, then हम लोग सर फिर वो एक ना बॉन्डिंग जो स्ट्रिक्टनेस होती है सर वो नहीं रही. सर मोर ऑफ लाइक मेरे फादर मेरे फ्रेंड जैसे बन गए. लाइक कोई भी दिक्कत है यू कैन जस्ट टेल मी, कोई भी दिक्कत हो. सर इवन अभी वो मेरे साथ बैठ के मीटिंग वो सुन ही रहे साइड बाय साइड, तो देख रहे हैं क्या.
सर और रही बात सर मार्क्स की, मैंने एक चीज देखा जैसे लाइक प्रिया ने भी बोला कि लाइक उसके फादर काफी उसके मार्क्स को लेके लाइक थोड़े बहुत टेंस रहते हैं। सर मेरे फादर का ये चीज नहीं है। उनके हिसाब से ये है कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तुम्हारा मन होना चाहिए। सर बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने बीजेएमसी करने से मना किया था। मेरे फादर ने बोला था इफ यू थिंक यू कैन डू यू मस्ट गो। तो उस पर प्रेशर देना मतलब तेरा करियर खराब करना। सर मैंने बीजेएमसी ली, आज सर मेरे घर पे ट्रॉफीज की लाइन है, कॉलेज में ट्रॉफीज की लाइन है, सर नाम हर जगह आ रहा है। जब मेरे पापा देखते तो सर उन्हें मेरे मार्क्स से ज्यादा मेरे इस अचीवमेंट पे ज्यादा प्राउड होता है। मतलब मार्क्स का क्या है, आज है कल नहीं है, कोई रेस नहीं जीत जानी। अल्टीमेटली मेरे अचीवमेंट से मेरे फील्ड में मुझे जॉब मिलेगी, मेरे को रिकॉग्निशन मिलेगी। तो सर नहीं, मार्क्स तो तुम्हारे अच्छे ही आते हैं, मार्क्स तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेशर नहीं पड़ा ना मेरे पे, प्रेशर पड़ता तो शायद मेरे मार्क्स डिटोरिएट होते कि नहीं पढ़ना है। सर फ्री माइंड होकर अगर हम पढ़ेंगे तो सर ऑब्वियसली सिर्फ लेक्चर से हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं घर पे नहीं पढ़ता, मैं लेक्चर्स अटेंड करता हूँ सर। लेक्चर्स में जो सुनता हूँ, जो बैठता है, मैं वही लिखता हूँ। सर मेरे मार्क्स ऐसे नहीं कि बहुत खराब होते, 79, 80, 82% सर आ जाते हैं। अब इससे ज्यादा करना भी क्या है मार्क्स का ना, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो फिर अचीवमेंट्स है सर, फील्ड वर्क है और क्या। जब दोनों मिला दूं तो सर सुहागा हो गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। So moving on to Aisha. Aisha, what will you tell us about your family? Unmute करो। Unmute करो। हाँ, now speak. सर मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही सपोर्टिव हैं। लाइक जब मैं 10th में थी तो आई वाज डिसाइड कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने उसको पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस दिया था, तो मेरा ड्यू में एडमिशन हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं 10th के बाद डायरेक्ट कॉलेज करूँ। उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिया। देन मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अभी मुझे 11th 12th करनी चाहिए, क्योंकि अभी मुझे अपनी स्कूल लाइफ पूरी अच्छे तरीके से एंजॉय करनी चाहिए। तो मैंने वहां से कैंसिल कर लिया। उसके बाद मैंने पूरा 2 साल अपनी इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करी। देन मैंने सोचा कि हाँ अच्छे से इंजीनियरिंग, जब भी मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे इंजीनियर बनना है। उसके बाद जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे इतना ज्यादा मतलब मजा नहीं आ रहा है इंजीनियरिंग, ये थोड़ा बोरिंग हो रहा है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली चीजें करना ज्यादा पसंद है और उसमें बहुत ज्यादा आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी पड़ती है। तो फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। जब मैंने बीजेएमसी करने के लिए बोला तब भी मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि जो भी करना है करो, बस उसमें अपना 100% दो और काफी अच्छे से करो। तो मेरे पेरेंट्स को मेरे न्यूज एंकर बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फादर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मेरी फैमिली हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। वेदर मुझे इंजीनियरिंग करनी है या न्यूज एंकर बनना है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है। सो गुड। नहीं, अच्छी बात है, पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तो लाइफ में आगे बढ़ना आसान हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। Now moving on to Priya. Priya, now I mean you on the verge of having this bachelor's degree and move into the open market. So whether you will search for some jobs and you will join some newspaper or news channel particularly because you are more interested in anchoring, or would you like to continue your study after the graduation? सर मास्टर्स तो आगे करना ही है मेरे को, बट अगर जॉब की बात करें तो इंटर्नशिप करा था वो ड्यूरिंग द मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दैनिक भास्कर में एज अ कंटेंट राइटर। और विजडम ट्रिक सॉल्यूशन एक कंपनी थी जहाँ पे प्रोडक्ट शूट करा था मैंने। उस प्रोडक्ट को मतलब एक्टिंग करी थी उस प्रोडक्ट के लिए ताकि वो प्रोडक्ट प्रमोट हो। और सो जॉब्स तो सर्च कर ही रही हूँ ऐसे साइड बाय साइड, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो एज अ कंटेंट राइटर। So Shubham, what will you say about your career further? I want your answer in just one sentence. Sir, मेरा सिंपल है सर, either I want to be go in the production field or I will do on my own. Like freelancing तो सर अभी चल ही रहा है, otherwise मैं खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहूंगा या फिर किसी प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहूंगा as a video editor director. Right. So what will you say, Aisha? Answer me in one line. Sir, I'll go for masters. So that is how we move towards the end of this program, and I must name my team members who have contributed immensely to the creation of this program. And the whole production and the creative team comprises Deepika Dhawan,
Sumantra Sarthi Das and Ritik Ghosh, and of course, Dr. Susmita Wala and the entire team, entire faculty member of DME Media School. I thank you all for their all support and cooperation, and also the support of the students who appear in every day in one of the episode. So I thank you to all the students who are there in this session today. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.